welcome to a very special episode of Frankly Speaking. Joining me today is Anupam Kher, actor, author, Kashmiri activist, and these days a mental health expert, a man who motivates people after being through several issues in his own mind, in his own life. Thank you very much, Mr. Anupam Kher, for joining me. Always a pleasure to have you on the show. And you know, there are many thoughts in my mind, each competing with each other. कि अनुपम खेर आए हैं तो किस चीज़ से शुरू करें, क्योंकि इतना भंडार है आपसे बातें करने का कि ये समझ नहीं आता कि किस टॉपिक से शुरू करें, क्योंकि आप हर टॉपिक पर इतनी डेप्थ की बात कहते हैं कि इंसान हर मौजू पर आपसे चर्चा करना चाहता है. बट फर्स्ट लेट मी बिगिन विद अनुपम खेर. India losing the original tragedy king, the original superstar, Mr. Dilip Kumar, on the 7th of July. And I was very moved by what you put on your post about Mr. Dilip Kumar, about your interaction with him. How do you remember Mr. Dilip Kumar, especially because you've done 4 films with him, of course, in senior character roles? How has he influenced you? Thank you, Navika. First of all, it's always a pleasure to talk to you on every subject. I'm not an authority on it, but I speak my mind, and I have the comfort of talking to you because you have a conversation rather than an interview. Dilip Saab was a complete man. If you have to give a definition of a complete person, that's what Dilip Saab was. And most accomplished actor India will ever see. I'm saying will. I'm not saying has. ऐसे एक्टर बनाता ही भगवान, ऊपर वाला, खुदा, जो भी है, वो एक बार है. Most amazing conversationalist on any topic. Most giving person. वो बिल्कुल, अब हालांकि क्लीशे लगता है कि बहुत 2 दिन से वही इस्तेमाल हो रहा है, पर एक युग की समाप्ति जिसे कहते हैं ना, हिंदी सिनेमा में या सिनेमा जगत में एक युग की समाप्ति, एक सदी की समाप्ति दिलीप साहब के जाने से हुई है. ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला. जैसा कि मैंने अपने ट्रिब्यूट में कहा था कि हम एक्टर बने ही उनको देख कर. और हम जब हमारे हिंदुस्तान में कुछ थोड़ी सी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड अ स्टार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु हैज बीन देयर फॉर मेनी इयर्स. ही वाज द फर्स्ट एक्टर हु could be realistic as well as exaggerated, as well as comfortable in doing tragedy and doing comedy. मैंने उनकी गोपी 10 बार देखी और राम और श्याम 40 बार देखी, और मधुमती वगैरह ये फिल्में तो मैंने देखी इसलिए थी. और मैं हैरान होता था हमेशा कि why is he so believable in every single thing that I watch of his. मैं स्कूल से एक ही बार भागा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल के बाहर एक रिगल थिएटर था शिमला में, और वहाँ गोपी फिल्म लगी थी, और गोपी फिल्म की टिकट खरीदते समय मेरे नाक में भी चोट लग गई थी. So these are the incidents one has seen. His dialogue delivery, his understanding of characters, how to do less and yet convey the most amazing emotion one learned from him or one saw him doing it. I remember talking to him and he used to always say, यार तू कितने सवाल पूछता है अनुपम, बस कर. तो मैं कहता था, सर मुझे इस जिंदगी का मौका मिला है. Call you a monkey. उन्होंने आपको एक बंदर बुलाया था ना शायद, जब आपने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे. Yeah, we were stuck in Mahabaleshwar during the shooting of Saudagar, and हम एक गुफा में फंस गए थे. बारिश पड़ रही थी, 2 घंटा मैं अकेला उनके साथ बैठा था. I chewed his brains about everything. आपने मधुमती में वो सीन कैसे किया था, राम और श्याम में वो आपने खाना खाने वाला सीन किया था. तो इतने बोले, मतलब खुश भी थे, पर मुझे तंग भी आ गए थे. मुझसे लगता, कहता यार तू बंदा है बंदर, बस कर. और मुझे लगता था उनसे बस कर बोलना भी कितना अच्छा लगता था. He used to make dialogues into poetry. I remember my mother, I remember Kiran, I remember Kiran's mother, every time really drooling when it came to
दिलीप साहब, क्लास, जिसे कहते हैं ना क्लास एक्टर। एक बारी वो मेरे को सौदागर की शूटिंग के दौरान मुझे बहुत भूख लगी थी। आई हैव अ टाइमिंग प्रॉब्लम, आई वांट टू ईट माय ब्रेकफास्ट एट सो एंड सो टाइम, लंच एट 1:30, एंड सो इट वाज 2:30। उनको बुलाया था तो लंच ब्रेक नहीं हुआ था, एंड वी वर इन मनाली सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट शॉट, एंड ब्रेक नहीं हुआ था, एंड आई वाज डाइंग ऑफ हंगर। तो मैंने उनसे गलती कर ली ये पूछ के कि सर मैंने सुना आपकी फल की दुकान थी पेशावर में। नाउ दिलीप साहब स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग कि सेब क्या होता था। कहते भाई अनुपम देखो, ये सेब मैंने लाल उठाया, एंड रिमेंबर दैट आई एम डाइंग ऑफ हंगर। मैंने लाल सेब उठाया, पुख्ता, जूसी, मैंने उसे देखा, सूरज की किरणों के सामने मैंने उसे रखा, फिर मैंने उसे दोबारा देखा, फिर मैंने उसमें दांत गाड़े, और फिर जब मैंने उसको चबाया और जूस जो था वो पूरे जहन में जा रहा था और मुझे मजा आ रहा था। फिर मैंने दूसरा बाइट लिया, मैंने कहा सर रुक जाइए, बस सर बहुत भूख लगी है। तो मुझे वो माइम वाला बोलते हैं तुम भी खा लो, बट ही क्रिएटेड दैट apple. You talk to him about science, you talk to him about literature, you talk to him about anything. And Paul Mooney was his most favorite uh, actor. So when I got to work with him in Karma, my first day, so I kept looking at him only. कि सर के हाथ कैसे हैं, सर कैसे सफेद कपड़े से गाड़ी से उतरे थे कुर्ता पजामा पहनकर, सर कैसे बैठे। तो जिस हसरत से मैं उनको देख रहा था कि सुभाष घई साहब रियली स्ट्रेस में आ गए, मुझे कॉर्नर पे ले जाके बोले भाई अनुपम तू मेरी फिल्म का मेन विलन है, ऐसे प्यार से देखेगा तो कैसे चलेगा। आई रिमेंबर दैट सो क्लियरली। So how do you describe a complete person? So you were Dr. Dang. You were Dr. Dang in that film Karma, और शायद दिलीप साहब was a police officer and he was in charge of the jail where you were. और एक if I remember correctly एक सीन था उसमें कि वो आते हैं और आपको एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं, if I remember correctly. सच में मारा था आपको? How did that scene pan out? But I'll tell you before that, सुभाष घई साहब ने एक लंबा शॉट मेरा रखा था जिसमें मैं बोलता जा रहा हूँ और सिर्फ दिलीप साहब सुनते जा रहे हैं। ट्रॉली शॉट, लंबा शॉट था, और मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया था, दिलीप साहब 11 बजे आए, तैयार व्यार हुए, लाले चाय वाय पिला। तो कभी कभी मैं उनकी नकल करता हूँ कि मैं थोड़ा पूछता हूँ पहले चाय वाय पिलाओ, फिर अब तो वैसा होता नहीं है। एंड देन व्हेन आई गेव दैट शॉट, ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड सुभाष बड़ा डेंजरस एक्टर आया है यार, he will go far. So I said चलो अब तो भगवान ने मुझे, दिलीप साहब ने मुझे खुद एंडोर्स कर दिया। But to be realistic actor, drama school actor, I told him, सर जी आप मुझे एक्चुअली मार दो थप्पड़ इस सीन में। तो वो थोड़ा मुस्कुराए, कहते तू रहन दे बेटा, रहन दे। मैंने कहा नहीं सर, मैं फील करना चाहता हूँ। तो कहते हैं तेरा डायलॉग क्या है? मैंने कहा जी मेरा डायलॉग है कि राणा विश्व प्रताप सिंह, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। तो कहते लाले जे मैं तेनू एक्चुअली थप्पड़ मारता ना तो उस थप्पड़ की गूंज तेरे कान में बहुत साल तक गूंजेगी। ये पठान का हाथ है, तू रहने दे, एक्टिंग कर ले एक्टिंग। सो that reminded me of an incident which Laurence Olivier told Dustin Hoffman during the shooting of Marathon Man. Dustin Hoffman दौड़ रहा था, and Laurence Olivier ने कहा ये कौन है बंदा ये दौड़ता जा रहा है? सर जी ये he is playing Marathon Man. He says so why is he doing it? He said no, he has to come huffing and puffing in this first shot. So he told him, tell him try acting for a change. So similarly, I think Dileep Saab said something very similar to me कि acting मत करो, आप चुपचाप थप्पड़ मत खाओ। But that scene became my mother's favorite film is Karma, and I spent so much time with him during Saudagar, during Karma, that it was amazing. We traveled once together to Panchgani. It was like going with the University of Acting. The world's topmost acting university, I was traveling with him. It was like that. So it's and it's not. But Anupam Kher, I want to ask you.
आई वांट टू आस्क यू, उन दिनों में कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी फॉर्मल एक्टिंग में? कोई एक्टिंग स्कूल्स इस तरह के नहीं हुआ करते थे? And from what I've heard from you, I've heard or read about other people talking about Dilip Kumar. You know, they used to copy his mannerisms. They would try and get a leaf or two out of the Dilip Kumar school of acting. और वो जो आप कह रहे थे कि आप गुफा में बैठकर उनसे 2 घंटे बात कर रहे थे और उन्होंने आपको बंदर बुलाया था, शायद आप अपनी एक्टिंग स्कूल के लिए कुछ लेसन्स जुगाड़ रहे थे विच यू कुड हैव यूज्ड इन द एक्टिंग स्कूल दैट यू रन फॉर यंग अपकमिंग एस्पायरिंग स्टार्स. हाउ डिड ही परफेक्ट दिस होल method acting, you can call it natural acting, without any formal training? Is it possible in today's world? So, Navika, I was telling you before that I was not just this gushing fan. I was a gold medalist from drama school. I had done a 3 years training. I had done my own work of theatre, cinema. So it was not that जी मैं आप कैसे करते थे. But I asked him. I said, आप trained actor नहीं हो तो आपने सीखा कैसे? मैं तो trained actor हूँ. ट्रेनिंग जरूरी नहीं इंस्टीट्यूशन में मिलती है. ट्रेनिंग जिंदगी से मिलती है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीपल, दे आर योर कैरेक्टर्स. इसे मैं पॉल मुनी की फिल्म 10-10 बार देखता हूँ जाके मेट्रो थिएटर में, उन दिनों बॉम्बे में. ही सेड आई स्टडी एक्टिंग. बट कैन यू इमेजिन, मैंने 37 इयर्स में 518 फिल्म्स की हैं. उन्होंने 60 इयर्स में 50 या 55 फिल्में की थी. बिकॉज he wanted to enjoy each and everything. There is not a single actor in all these years who is not influenced by Dilip Sahab, whether it is a newcomer or whether it's a superstar. You can actually see the chubby of Dilip Sahab in most of the actors, the pauses that he used to take. But he said, I learned acting from life. हमारे स्कूल नहीं होते थे. कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए था, because there are so many things. And the best part was that he was not at least projecting that he was the greatest actor ever. He said acting is one profession where you can keep on learning and keep on doing more and more things till you are 80, 90, anything. There is no syllabus for acting. So it was not just because he did not go to the school of actors or acting that he did not follow a procedure. He used to rehearse on and on and on. And he will say, nahi, इसको ऐसे ट्राई करते हैं. Let's try it like this. Let's try it with a little bit of smile. Let's try it with a little bit of frown. And you could see that. So that is how he prepared and delivered all his performances. मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि he was not very happy with the tag of tragedy king. यार क्या मैंने ट्रेजेडी किंग बोल देना. मैंने कहा क्यों ऐसा, क्या आप ट्रेजेडी किंग है ना, आप ट्रेजेडी किंग से नहीं है. एन एक्टर इज अ कंप्लीट एक्टर ओनली व्हेन ही कैन डू ऑल द इमोशंस. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू सी हिज कॉमिक फिल्म्स यू कैन रियली सी हाउ अमेजिंग ही वाज. आई आस्क्ड हिम, आई सेड आप डांस नहीं करते हो ज्यादा? ही सेड डांस, कैरेक्टर अगर डांस नहीं करता है तो एक्टर थोड़ा डांस करेगा. इफ दिलीप कुमार इज अ ग्रेट डांसर डज नॉट मीन दैट ही हैज टू डांस like he is Birju or he is Sham, so he will dance like Sham. He doesn't have to dance like Dilip Kumar, which are a logic. And yesterday somebody sent me a song that he has sung with Lata Mangeshkar ji, private song. Amazing it was. खाने के शौकीन, खाने की बात में बात करो तो ऐसे हर तरफ से पहुंच जाते थे. मौसम के बारे में बात करो तो मौसम के बारे में बताना शुरू कर देते थे. It was joy to spend time with him. And naughty. मुझे तो बोलते तू बहुत शरारती है. मैंने क्यों सर, मैंने क्या किया? कहता नहीं, तेरी आंखों में शरारत होती तो लगता है कुछ तेरे चल रहा है. So these are the kind of intimate conversations you are having with a person who is God for you as far as acting is concerned. And सुनते थे. You know, a lot of people do an acting of listening to you. You know, they pretend they're listening to you. But he used to be, he had this childlike quality that of inquisitiveness. अच्छा फिर और क्या, मेरे को क्या सिखाते थे आपको स्पीच? मैंने एक दिन बताया कि स्पीच का सिखाते थे जी. If you put your tongue behind your lower teeth and you keep doing it improves your voice. Then he did that with me for 10 minutes. He said चलो करते हैं.
Well, Anupam Kher, there are reports that say that you gate crashed a party when you met him, and you shook hands with him, and after that, आप 2 दिन नहाए नहीं. Is it exaggerated, or is it really a true incident? इट्स अ कम्प्लीटली ट्रू इंसिडेंट. स्क्रीन न्यूज़पेपर की पार्टी थी, उनकी सालाना पार्टी होती थी. मेरे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट अली पीटर जॉन. ही हैड टोल्ड मी दैट मैं तेरे को पीछे वाले गेट से अंदर ले आऊंगा, एंड इट्स इन माय प्ले आल्सो. तो मैं अंदर गया और मेरे 2-3 दोस्तों को भी हम अंदर ले गए. तो आई वाज स्टन्ड बिकॉज इवन दो I had been in Bombay for the last 2 years, but I was seeing all actors there. And suddenly, I saw Dilip Saab coming. So I went up to him and I said, "Namaste, sir." तो उनको लगा कि वो एक पुराने कोई जान पहचान का बंदा है जिसको मैं पहचान नहीं रहा हूँ. तो उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे अपनी बगल में रखा और बोले, अरे भाई कहाँ रहते हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए. Now Dilip Saab's, my hand is in Dilip Saab's bagal, and he's talking to everybody, and I'm walking behind him like a clown. And I'm सर जी बस यहीं रहता हूँ. अच्छा कैसे हैं भाई, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ गए थे, चले गए थे. He was being polite that I think I've met him and I don't recognize him. Let him be nice, because he was sure that इस पार्टी में कोई गेट क्रैशर तो नहीं आएगा. और मैं चाहता था कि पूरा वर्ल्ड मुझे देख ले इस समय कि मेरे दिलीप कुमार साहब ने मेरा हाथ अपनी बगल में रखा हुआ है. I must have not had washed my hand for a long time, and that's why when I decided to open a huge studio which did not finally work, he was my chief guest. He came to see my play, कुछ भी हो सकता है, where in the opening night with Saira ji, and after the play he is telling me, अजूबा हो तुम, 2 घंटे तक बोलते चले गए, और जो मेरे बारे में लाइन बोली है ना, ऊपर वाला इस दुनिया को यूसुफ साहब जैसा इंसान बड़ी मुश्किल से देता है, गलत है. बहुत लोगों को दिया है ऊपर वाले ने. So it's true. I gate crashed and Dilip Saab held my hand and told me, "कहाँ रहते हो?" And I told him of this incident when I met him during Karma. मैंने कहा सर ऐसा क्या था. And now I, as an elderly person or an older actor, sometimes meet people. I do the same thing. I think यार इसको कहीं मिला हूँ तो इसको बोलता हूँ, हाँ भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है. Then I think, oh my God, this is what must have gone on in Dilip Saab's mind. पर फिर कैसा लगा था? अभी मैंने रिसेंटली इंस्टा में देखा था आपका एक वाकया, जब आप हिमाचल प्रदेश में घूम रहे थे. सो कॉल्ड आपका घर है शिमला में, और वहाँ आप एक आदमी से मिले थे और उसने आपको पहचाना नहीं और पूछा आप हैं कौन. अच्छा लगा था एक्चुअली. इसी अगर अच्छा नहीं लगता तो मैंने ही शूट किया था, मतलब मेरे असिस्टेंट ने शूट किया था जो मेरे साथ था वहां पर, तो मैं उसको डालता नहीं. बिकॉज यूजुअली एक्टर्स हमेशा पूरी जिंदगी यही चाहते हैं कि हमको सब लोग पहचाने. तो आई वाज जस्ट ऑन ए वॉक एंड आई फुल्ली कॉन्फिडेंट. आई थॉट ऐसा कौन है हिंदुस्तान का बच्चा, और खासकर एक खास उम्र का 40-50 साल का, तो उसको तो पता ही है. हो सकता है आजकल के लड़कों को, शायद बच्चों को ना पता हो, बट उनको भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ पता रहना चाहिए. तो आई हैड नो आइडिया दैट ही इज गोइंग टू से मैंने आपको पहचाना नहीं. बट यू नो हिज नेम इज ज्ञानचंद. नाउ ही इज बिकम सो फेमस that, and Gyanchand, that way, Gyan ka Bhandar. Now media has gone to his house and he calls me every day. He goes to my mother in Shimla and बोलता जी माता ये 1 किलो घी ले लो, ये दूध ले लो. But it was so refreshing to feel that there is somebody who is so involved with his own life. His job is to give milk to the army cantonment mess, and it was refreshing. It was so funny. And I was not upset. थोड़ा आवाज नहीं आई. नहीं बिल्कुल नहीं दिल टूटा. मैं आई एम टू श्योर ऑफ माई सेल्फ. मुझे कोई परेशानी नहीं होती अगर मैं पॉपुलर नहीं और ना ही रहूंगा. वो पढ़ा लिखा होने का बड़ा फायदा है. When you become somebody, you become because of your hard work and your background. Because the truth is that I will never put, अगर मेरा दिल टूटता, मुझे पता था कि लोग इससे हंसेंगे, ये वायरल होगा, क्योंकि लोग मुझे somebody reminded me of an incident between JRD Tata and Dilip Saab to join together, where they were flying together and JRD Tata Saab asked Dilip Saab, भाई आप क्या करते हैं. I don't know how true is this incident, but this is a legendary incident, and I think life is a sum total of all these such incidents that take place in your life. Anupam Kher,
एक एक दौर वो था जब यूसुफ खान ने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर लिया था, ये सोच के कि शायद यूसुफ खान की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो। और एक ये दौर है जहां खान बिकेम द रूलर्स ऑफ बॉलीवुड। व्हाट्स चेंज बिटवीन देन टू नाउ? I think that happened during immediately after partition, and partition had its uh, own share of problems. I don't think even if he had kept his name continued Yusuf Khan, it would have not made a difference. The fact that all three Khans, Amir, Salman, and Shah Rukh, have ruled for 25 years. So we don't, when people go and watch the film, that don't really sort of see who is who. But उन्होंने उस समय सोचा होगा, because 1942 में 47 में पार्टीशन हुआ था, नया नया सब कुछ हो रहा था. But that did not mean that he was not known as Yusuf Khan. Yes, Dilip Kumar उन्होंने नाम चेंज because Rajendra Kumar, Dilip Kumar, Manoj Kumar, these were the kind of names which were popular. And at that time must have felt that half the population has shifted to Pakistan, and if I need to be popular, let me keep a name. But that did not make any difference to his popularity, even if he had kept his name, because the actor was much larger than the name that he had. अनुपम खेर, आई वांट टू आस्क यू, एक वो दौर था तब की फिल्में कैसी बनती थी. देयर वाज सो मच वर्क इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट्स, वर्किंग ऑन आइडियाज, वर्किंग ऑन द स्टाइल ऑफ एक्टिंग. फिर एक दौर आया जहां कमर्शियल फॉर्मूला फिल्म्स बहुत सारी आई और स्टोरी लाइन शायद कुछ हट गई. एक दौर है जहां पर प्रीमियर शोज हुआ करते थे एंड स्टार्स virtually were stars in the sky and the public used to absolutely look at them जैसे ये unattainable हैं. And there was this whole romance around names of beginning with Madhubala, Vaijayanti Mala, Wahida Rahman, Dilip Kumar, Rajesh Khanna, as you said, Rajendra Kumar, all of these actors at that point in time. And then there came a time when there were fast commercial films that were made. Today we are virtually at a crossroads as far as creative cinema is concerned. Post COVID utna romance nahi hai. OTT platform has become the mainstay because आजकल शायद कोई multiplexes में भी नहीं जा रहा है. How do you think this is going to move on from here? The different phases that we have seen. आज के बाद, अब के बाद, इस कोविड चैलेंज के बाद, अब ये जो फिल्मों की दुनिया ये कैसी होगी? So I feel that we are 74 years old, young or old, whatever the country. The cinema or the art of every country reflects the era that it has gone through, the decades that it has gone through. If you notice from 1947 to 1957, the films were a little फैमिली ओरिएंटेड. द 60s 70s जो हीरो होता था वो काम ढूंढने जाता था और उसको काम मिलता था, ईमानदारी की बात होती थी. वी वर जस्ट बिकम इंडिपेंडेंट. 70s में जॉब्स नहीं मिल रहे थे तो इमर्जेंस ऑफ एंग्री यंग मैन शुरू हुआ. एक आदमी, एक इंसान जो खुश नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से, जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ता था. उससे पहले राजेश खन्ना रोमांस वगैरह, द किंग ऑफ रोमांस था. फिर अमिताभ बच्चन साहब आए जो एंग्री ओल्ड मैन को रिप्रेजेंट किया. 80s was a confused era. We did not know where we stood in life as a country. So we had films, even though Saransh came in 84, but what I'm trying to say, 80s का जो दशक था वो confused था. People were confused. We did not know. Liberalization had not happened. We did not know what was going on in the country. Emergency had happened. I'm just saying that reflection was that. साउथ की फिल्में जो हिंदी में ट्रांसलेट होती थी, जीतू जी की, श्रीदेवी की, ये सब फिल्में बनती थी. 90s में विद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड कुछ कुछ होता है, द वर्ल्ड ओपनड अप एंड देन द NRI ऑडियंस केम इन. यू अंडरस्टैंड? सडनली हम आपके हैं कौन, शादियां कैसे करनी है, हम आपके हैं कौन की तरह करनी चाहिए, रोमांस कैसा होना चाहिए, शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया में लंदन का लड़का है और ये यहाँ आके मोहब्बत होती है, फिर कुछ ये वो हो गया. 2001 में अगेन द वर्ल्ड हैज, 2020s तक जो है, द वर्ल्ड हैज चेंज. इंडिया
and everything has changed. Social media has become important. The halo behind actor is not important. People are on social media, Twitter, Instagram. They want to show how they make omelette or how they wear a shirt, the paparazzi, the everything. So there is that enigma, that thrill of being a star is now in how many followers you have. Of course, and also you could continue to be a superstar and heartthrob for 60 years. Look at Mr. Bachchan, 45 years still going strong. Dilip Sahab, if he had not fallen sick, 60 years. 25, 30 years, almost Shah Rukh Khan, Salman Khan, and Amir Khan. Now the time is that your last film has to be good. It doesn't matter how many films you have done before that. Now the audience is, now everybody in the audience is a critic. You're watching a film, पहले 10 मिनट में ही आपने रिव्यू डाल दिया, बकवास 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 बकवास, and negative attracts first. But COVID has changed the scenario. COVID has taken away the sheen out of, I must say, the superstars, the sheen out of the glamour of the going to a cinema hall, because when you pay for something, you have greater respect for it. Going to cinema hall is an event, is like a picnic. आप 4 दिन पहले डिसाइड करते हो, फिर आप जाके सारे परिवार लेके जाते हो, फिर आप लाइन में खड़े होते हो, फिर आप समोसे पॉपकॉर्न खरीदते हो. इट्स एन इवेंट. अब वो हो नहीं रहा है. एंड थैंक गॉड फॉर OTT platforms that it did keep the world in some kind of a sanity, because there was constantly something going on. But that does not mean that the magic of cinema will be gone. Magic of cinema will always be there. We are always interested in larger than life things. It's a phase, and OTT is here to stay. Like mobile is here to. When हम trunk call पे बात करते थे, हाँ जी जरा PP नंबर लगा देना जी, पुष्कर नाथ जी के बेटे अनुपम खेर को बुला दो जी. और ट्रंक कॉल पे ऐसे बात करते थे, हाँ जी आ जाओ. तो PP वाला जो जिसके घर पे फोन लगा था, चाय वाय भी पूछता था जब आप फोन करते थे. Now every single person, whether it's a beggar on the street or they have their mobile. बीच में वो बीच में जो कॉल आपकी कनेक्ट करते थे वो सुनते पे थे और पूछते हैं एक्सटेंड करना है. हाँ अच्छा अरे एंड देन दे विल टेल यू अगर आप 1 मिनट भी बात करेंगे तो 3 मिनट के पैसे लगेंगे. Correct. So they were constantly listening to it. So that innocence from the world is not there. But technology ke aane se, how can innocence be there? We have to move on with this. Look at us. You are sitting in Delhi, I think at your home or wherever. I am in my school in Bombay, and we are talking about it. So we are enjoying the benefit of technology, of the development that has taken place. But cinema will always be there. आज नहीं, 1 साल लगेगा, टाइम लगेगा, और लगना भी चाहिए. Social distancing का time है. We've lost so many people. The pandemic is worldwide, but that will not mean that people will not want to go. I have a feeling that whenever this pandemic is announced, it's gone. Whenever the lockdowns are gone, maybe 5 months later, 1 year later, there will be much more that people will celebrate cinema. That's what an optimistic me thinks. Nothing dies down. हम हर बार सुनते हैं कि जी थिएटर की डेथ हो गई टेलीविजन के आने से, फिर OTT के आने से सिनेमा की डेथ हो. कुछ नहीं होगा. There are people who invent, as long as there is need to be original, as long as there is need to reinvent yourself, nothing will go off. Anupam Kher, a while ago, when we were talking about COVID, you were quoted as saying कि हाँ सेकेंड वेव में गलतियां हुई हैं, और वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि आपको तो भक्त खेर कहा जाता है. आजकल की दुनिया में थोड़ी ऐसी पोजीशन नहीं हो गई है कि आप किसी भी नॉर्मल चीज को भी अगर आप कह दो कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब आप एंटी मोदी हो, बिकॉज दुनिया दो डिविजन्स में हो गए हैं, या प्रो मोदी या एंटी मोदी, बीच की कोई जगह नहीं है. आपको लगता है कि ये क्लासिफिकेशन जो हम अब करने लग गए हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में, ये बाइनरीज जो हम ढूंढने लग गए हैं, ये ओवर सिंप्लीफाइड है या बायस्ड है? I think because everybody has a platform to
give an opinion. It is easier to take sides. And it gives you a certain kind of vicarious pleasure when you're running down somebody. और ये अभी से नहीं हुआ है सोशल मीडिया, पहले भी होता था. मुझे याद है जो हमारे घर के पास, हम सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था. तो जब मल्होत्रा साहब के घर पे कलर टीवी आ गया तो हम सब ने बोलना शुरू कर दिया रिश्वत लेते हैं, बिकॉज हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे पास क्यों नहीं आया. जब हम कॉलेज में थे तो ऐसा नहीं थे, लोग बुराई नहीं करते. जब हम ड्रामा स्कूल में थे तो जिन एक्टर्स को रोल नहीं मिलता था और मुझे बहुत सारे रोल मिलते थे, तो ऐसा नहीं था कि वो मेरे क्लास फेलोज को तकलीफ नहीं होती थी. वो कहते थे यार ये टीचर के पीछे पड़ा रहता है, टीचर का बस्ता उठा के लेके जाता है, इसलिए इसको रोल मिलते हैं. जब मुझे सारांश का मेन एक्टर का रोल मिल गया तो सबने बोलना शुरू कर दिया तो बुड्ढे का रोल मिल गया, 2 दिन में बर्बाद हो जाएगा. फिर जब मैंने सुभाष घई साहब के साथ काम कर लिया, दिलीप साहब के साथ काम कर लिया, तो बोल दिया अरे यार ये तो हर जगह पहुंच जाता है काम मांगने. फिर मुझे इंटरनेशनल फिल्म में मैंने काम कर लिया, अरे यार ये पता नहीं अपने एजेंट ढूंढता रहता है बाहर के. So people who are dissatisfied or unhappy people, they have to find some reason to justify their existence for their own self. So there are two kinds of people. One are doers and one are criticizers. I am in the category of doers and I would like to say that you are also in the category of doers. अगर हम यही सोचते रहेंगे, हाँ there is a divide which if you want to think about it, but if you don't want to bother about it, then you just carry on doing your work. It is very important to not try and make the whole world happy, because not going to happen. The whole world was not happy even with Gandhi ji. We are not happy with gods also. हमने भी चूज कर लिया, आज शिव जी ने मेरा काम नहीं किया, चलो मैं आज हनुमान जी पर ज्यादा ध्यान दूंगा, जय हनुमान ज्ञान सागर जय गुरु. मैं नहीं मानता, मंडे को मेरा काम नहीं हुआ, मंडे शिव जी का. I'm just saying that we have to find reasons to feel better about ourselves. और ये अमृत मंथन है, ये धीरे धीरे निकल जाएगा. हमारे को 1000 सालों तक तो हम पर कुछ लोगों ने राज किया था, पर उससे हमारी जो संस्कृति है, उससे जो हमारी जो हमारा दृढ़ता है, या उससे जो हमारी जो जड़ें हैं वो बरकरार रही. We are the people who gave zero to the world. We are the people who wrote, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र 4th century BC में लिखा था. तो ये तो आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, ये हमको जीना ही पड़ेगा. ये जो व्हाट्सएप की जिसको कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, you have to learn to sort of detach yourself. You have to learn to detach yourself. But I also feel that families have to play a very important role in this. और 4-5 लोग ही होते हैं जो आपको important होते हैं लाइफ में, जिनकी opinion matters. I feel that if I am wrong, then I will change myself. Then if I am not wrong, then it does not matter what people say. So है उसमें तकलीफ में ऐसे 4-5 लोग कौन हैं जिनकी ओपिनियन आपके बारे में आपको मैटर करती है, जिनकी वजह से आप अपने में कोई बदलाव लाना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं उस परिवार से हूं जहां सब आदमी बड़े ऑनेस्ट एक दूसरे के बारे में होते थे. लाइक अगर ओपिनियन मुझे ढूंढनी, किरण जो है, अगर उसको मेरा काम अच्छा नहीं लगता या कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं हालांकि उससे झगड़ा कर लूं कि बोल के कि नहीं तुम तो ऐसी बोलती रहती हो, बट आई विल नो दैट शी वाज राइट. माय ब्रदर horribly honest about things about me. My friend in Delhi, Vijay Sehgal, who was a cashier in a bank, Sikandar, my mother. एक दो दोस्त ही होते हैं मेरे दोस्त, अनिल कपूर या सतीश कौशिक, यही जो है एक दूसरे को सच बोल सकते हैं. अब मैं सारे मोहल्ले को खुश करने की कोशिश करूं, सारे लोगों को खुश करने की कोशिश करूं, तो मैं दुखी रहूंगा. It is not possible to please everybody. You just need few people to tell you, yes, you were wrong or you are wrong. And you have to have the magnanimity and you have to have the understanding of acknowledging when they are saying you are wrong. You have to say, yes, I was wrong. और फिर आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से थोड़ा झूठ बोल सकता है. मैं अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैंने निगाहें फिल्म में बहुत बुरी एक्टिंग की थी. मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने ब्लू लेबल की बोतल दे दी थी लाके कि जी फिल्म के रिलीज होने से पहले, You have to listen to this. तो मैंने ब्लू लेबल तब तक जिंदगी में मेरे पास कभी थी नहीं. तो उसने मेरी फिल्म देख के 4-5 दिन बाद रिलीज थी, पूरन चंद्र राव जी ने, जो मद्रास के डिस्ट्रीब्यूटर थे,
उन्होंने कहा दिस इज फॉर योर मोस्ट अमेजिंग परफॉर्मेंस इन निगाहें। निगाहें वाज द पार्ट 2 ऑफ नगीना। और मैंने एग्जैक्टली रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और मेरे जब मैं उस रोल को कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये रोल इतना अच्छा करूंगा कि अमरीश जी को लोग भूल जाएंगे जिंदगी भर के लिए। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी थी। और ऊपर से जब मैं डबिंग कर रहा था मैं सोच रहा था यार ये मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, इतना ज्यादा क्यों एक्टिंग कर रहा हूं मैं, इतना ज्यादा क्यों किया हूं। मगर उस सबसे पानी हट गया जब पूरन चंद्र राव जी ने ब्लू लेबल की बोतल मुझे गिफ्ट में दी थी। तो मैंने यश चोपड़ा जी को, पहम चोपड़ा उनकी वाइफ को, रेखा जी को एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में बुला लिया फिल्मालिया स्टूडियो में। फिल्म शुरू हुई, पहला सीन हुआ तो मुझे लगा, किरण मेरा ऐसे बगल में हाथ पकड़ के अंदर गई थी थिएटर में। मैंने उसको कहा, उसको भी लगा कि भाई ब्लू लेबल आई है तो इसने कुछ कमाल किया होगा। तो मेरे साथ ऐसे हाथ में बगल में हाथ डाल के बैठी थी साथ में। पहला सीन देखा उसने तो उसने हाथ उठा दिया अपना, दैट आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैन। सेकंड सीन हुआ तो रैम जी कहती है, मिसेज यश चोपड़ा कहती है, डार्लिंग मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। पांचवा सीन आया तो रेखा जी बोली मुझे कहीं जाना है, सुबह मेरी जल्दी शूटिंग है, वो चली गई। छठे सीन तक मैं सोच रहा हूं हे भगवान थिएटर में भूचाल आ जाए या कहीं से सांप आ जाए जो जिसको छोड़ के पिक्चर बंद हो जाए। With great respect for Harmesh Malhotra ji who had made that film, great, God bless his soul, he was a wonderful person. But I'm talking about my personal experience. छठे सातवें सीन के बाद यश जी बोले यार और कितनी देर चलेगी ये फिल्म। So I have, and if I think about it कि मैंने तो कमाल किया है, मैंने नहीं कमाल किया है। But there are days when I think I have done amazing work, and when then some critic writes that horrible, when I think I was brilliant, even if I'm saying it myself, in Accidental Prime Minister. And lots of critics with certain agendas completely destroyed that performance by saying, "Isko to kuch aata nahi hai, he had an agenda." But whatever they may say, I know how much work I have put in and how a great performance it is. I would put it as one of the 7 best performances of my career. तो अनुपम खेर जी, आपने ये तो कहा, बट लेट मी आस्क यू, और ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि किरण आपको बिल्कुल फ्रैंकली और ट्रूली बता देती हैं कि आपकी एक्टिंग सही रही या नहीं। आप में इतनी हिम्मत है आप उनको बता सके? बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे घर का किचन भी चलाना था, इसलिए मैं इतना फ्रैंकली स्पीकिंग उनसे बात नहीं कर सकता था। वो 15-20 फिल्में उन्होंने की हैं। आपके शो का नाम फ्रैंकली स्पीकिंग है, मगर यहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग हो नहीं सकती थी, बिकॉज शी वाज, हाउ कैन आई से दैट शी वाज नॉट गुड इन खामोश पानी, हाउ कैन आई से दैट शी वाज नॉट गुड इन देवदास। हम तुम जैसी फिल्म में भी अपना यश जी की वीर ज़ारा, निक्के निक्के बच्चे, that dialogue everybody remembers, but she did not have the burden of sending money every day for the house to run. तो मैंने मुझे तो मजा आता था फिल्म करने के लिए, but certain times I feel that if I have to say certain things, not necessarily about the performance, I do. How do I describe? We have a very normal atmosphere in our homes, both at my parents' house, brother, and even at my place. If you see Sikandar's Kher Saab, those series that he does, or I do with my series on Instagram with my mother, you will find it normal. We don't call each other. It's a very warm relationship also. आपने बीच में बड़ी सारी ऐसी वैसी फिल्में की, now I understand you're saying कि आपने किचन चलाने के लिए की, but you did go through mental health issues yourself. One sec. Navika, one sec. Not only kitchen chalane ke, I enjoyed my most ordinary work also. I enjoyed doing the worst performance also because I was doing work. You see, like life is 20% excitement and 80% monotony. So I will not say मुझे मजबूरी में करना पड़ा। नहीं जी नहीं, मैं तो बड़ा मजा आता है मुझे, जो मेरी फूहड़ परफॉर्मेंसेस भी हैं, मुझे पूरे दिल से किए हैं, because that's part of my journey. अगर मैंने सिर्फ सारा जैसी फिल्म करी होती तो आज मैं आपके साथ इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। तो sorry, so you were saying something. That's true.
That's true. I was talking to you about your association with the mental health issues, and I read the account of one of your colleagues who was working on your film series. हाउ डू यू थिंक ये दौर कैसा रहा है लोगों को जो घर में बैठना पड़ा है? देयर हैव बीन पीपल हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, सम पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, सम पीपल जस्ट बाय बीइंग कूप्ड अप इन द हाउस हैव हैड टू फेस सेवरल मेंटल चैलेंजेस बिकॉज आप घर में हैं, कोई चेंज ऑफ सीन नहीं है. इफ यू आर डूइंग हाउस वर्क देन यू आर डूइंग इट ऑल डे. इफ यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन यू आर डूइंग इट ऑल डे. यू हैव टू कीप एवरीबडी एंटरटेन्ड एंड ऑक्यूपाइड एंड येट pretend that life is going on. How do you deal with these issues of COVID especially, and of course general mental health issues? So first of all, I have great compassion for people who go through mental health issues. We all have gone through at some stage or the other. And the only thing I can say that when there were joint families, there were not such problems. उसका ये था क्योंकि कोई ना कोई आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा होता था. कोई ना कोई आपसे पूछता था, चाचा ताया मामा मामी कि क्यों यार चुप करके क्यों बैठा है, कोई ना कोई जवाब होते थे. ये जो अभी सिंगल फैमिली सिस्टम हो गया है तो ये उसमें कि हर एक के पास खाना खाने बैठते थे, मजाले की कोई अलग बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाना. नाउ एवरीबडी, इवन पेरेंट्स हैव मोबाइल फोन्स विद देम. You are on a table, but you are still looking at. Everybody has this own room syndrome. So there is a luxury which is given, but that also is a loneliness oriented. You have too much. How much can you deal with machines? कोविड में क्या हो गया कि आपको किसी को गले लगा नहीं सकते. गले लगाने की एक थेरेपी है, मतलब आपको किसी की तकलीफ लेना चाहे तो सोचने का बहुत टाइम है. People also, parents also say, चलो वो सोच रहा है या सोच रही है, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. I think it's very important to engage family members first on a level of family. You have to engage. It's very important. I lost a very dear colleague yesterday, and the way it came to me yesterday about this girl, Sarhana, who was the line producer on Kashmir Files. I suddenly got from her message yesterday from her phone, sent by her brother, that she killed herself. So I think it comes out of a sense of loneliness, a sense of helplessness, a sense of what am I doing, and we have to sort of address this. That the next, I will suggest that the government should have a ministry of mental health also, because it should be taught in the schools. Like हमको खांसी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको पेट में दर्द होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं. अगर हमको लगता है कि हमारे माइंड में एक तो स्टिग्मा जो है हमारे बिकॉज ऑफ इलिटरेसी और लिटरेसी और व्हाटएवर इट इज, इट्स स्टिल स्टिग्मा कि आप बोलो कि मेरे को डिप्रेशन है, आपको लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है. सो वी नीड टू एड्रेस इट वेरी एग्रेसिवली, वी नीड टू चेंज इट वेरी एग्रेसिवली, वी नीड टू individually come out and say, yes, I am going through depression and I want to talk about it. Everybody goes through it, whether it's rich or poor. It is one disease or one stigma or one symptom which most of us go through today because of the life. Because constantly you are made to feel that somebody else is doing better than you. You are constantly made, आप अपने प्रोफेशन में देख लीजिए, मेरे प्रोफेशन में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मेरे 500 फॉलोअर्स हैं, तेरे 300 फॉलोअर्स हैं, you suddenly are made to feel किसी के पास 200 ज्यादा फॉलोअर्स क्यों. You are constantly made to feel that things are not sufficient for you. So maybe this, even though people lost a lot of people during this lockdown, maybe this is a time when families also did come together. You started having a communication. There was a pause. But I'm very serious about mental health issue being discussed, talked, formalized in a certain manner that we can address it in a very, very, very deep and important manner.
अनुपम खेर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कोविड के दौर में एक एनजीओ के साथ काम किया, आप एक ऑर्फनेज शुरू करें, और सबसे अच्छी बात जो आपने किताबें लिखी हैं, एक तो किताब योर बेस्ट डे इज टुडे, मिडल ऑफ लॉकडाउन, और उससे पहले कुछ भी हो सकता है। एंड टिल when I saw the book and I even interviewed you in New York when Kuch Bhi Ho Sakta Hai was just launched, and then your best day is today. मुझे लगता था कि ये कुछ भी हो सकता है. It doesn't give a sense of क्या है इस किताब में, क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं. लेकिन जब वो पढ़ी किताब, तो ऑलमोस्ट यू बिगिन टू लिव दिस. अब हम लोग आपस में भी बात करते हैं ना, तो कई बार लगता है कि अरे ये हो गया मेरे साथ, यार ठीक ही बोला था अनुपम खेर ने. और वो फीलिंग खुद से आती है, यार कुछ भी हो सकता है किसी के साथ. इट जस्ट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट यू डोंट हैव टू बी अ समबडी फॉर समथिंग टू हैपन टू यू. वो किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. एंड देन इन दीज डिप्रेसिंग टाइम्स टू से योर बेस्ट डे इज टुडे. बिकॉज आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप नॉर्मली सोच रहे हैं आज का दिन पता नहीं कैसा होगा, लेकिन टू एक्चुअली गो आउट विद दैट ऑप्टिमिज्म, विद दैट पॉजिटिव थिंकिंग एंड से योर बेस्ट डे कुड बी टुडे. आफ्टर ऑल अब तक जो मैंने किया है शायद इतना अच्छा नहीं, आज ही शायद कुछ अच्छा हो. इन दोनों किताबों के पीछे आपकी सोच क्या थी और आपका मैसेज क्या था? So कुछ भी हो सकता है is my autobiographical play which I wrote as a book which is kind of an autobiography called Lessons Life Taught Me Unknowingly. And your best days today तो मैंने अपने डर को दूर करने के लिए लिखी थी, to be very honest. During pandemic मुझे सडनली लगा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड ऐसा हो जाएगा, कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो जाएगा, पूरे इतने सारे लोगों की डेथ हो जाएगी. So whenever as an actor, as a person, I feel that there is a certain amount of fear in me, I start writing. It's therapeutic for me. And also, तकलीफ, दुख, मायूसी, डिप्रेशन तो सब बेचते हैं. I would like to sell, if I have to, happiness, optimism, because if you can't make a difference in somebody's life with something, at least you can give it a smile. मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि स्माइल इज द ओनली थिंग यू विल गेट इट इमीडिएटली रिटर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, आप किसी पर स्माइल करो, वापस इमीडिएटली आपको स्माइल करेंगे. इसमें कोई उधार नहीं रखता है, और ये फैक्ट है. और मेरे फादर ने कहा था द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी. आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अदर्स हैप्पी. आई डू इट फॉर माई सेल्फ. Because when I see today, I went to the Cancer AIDS Association to distribute food to the cancer children. It was so gratifying and humbling to see those children जिनको राशन हम दे रहे थे, जो सब आके बोल रहे थे और कह रहे थे थैंक यू वेरी मच. और मैंने एक कैमरा की तरफ बोला भी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जी चुपचाप क्यों नहीं अच्छाई करते हो. क्यों करूं मैं चुपचाप अच्छाई? अच्छाई करेंगे तो लोगों को अच्छाई करने का प्रोत्साहन मिलेगा ना. तो ये क्या चक्कर होता है कि जब मैंने कहा ना डूअर्स एंड क्रिटिसाइजर्स. सो आई फील आई रोट दोस बुक्स टू मेक माई सेल्फ फील बेटर एंड इन द प्रोसेस मेक अदर्स फील बेटर. आई वॉज ब्रॉट अप इन द फैमिली वेर आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं. तो उन्होंने कहा था बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू. डीप वर्ड, वेरी डीप वर्ड, वेरी डीप वर्ड. तो मुझे कभी मैं आपको पता है, मैं ये बात अभी टंके की चोट पे इसलिए भी कहता हूं, और मैं किराए के मकान में रहता हूं. बिकॉज आज से 5 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे घर खरीदना ही नहीं. सो I am liberated. I am so liberated because I feel क्या टेंशन रहती है. We had a house, we wanted to sell that and buy a bigger house. 3-4 साल लग गए, ये पसंद नहीं है. एक दिन मैं शूटिंग से वापस आ रहा था, मैंने किस लिए ले रहा हूं मैं घर, क्यों खरीदूंगा मैं. Whatever amount that is there, I will feel always this amount is with me. So that liberated me. The idea is to not carry the burden of being Anupam Kher on my shoulders. The lighter I am, the
bigger the flight I will take. And that's what people have to do. And people have to constantly, tirelessly talk about optimism and happiness and spread it and share it. Anupam Kher, have you dealt with your own depression that you once felt? या आप जो कह रहे हैं आप हंसते रहते हैं और ये बुक आपने लोगों को हंसाने के लिए लिखी, तो वो एक अच्छा महसूस कराने, एक गाना है बड़ा अच्छा अर्थ फिल्म का, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तो कोई गम है जिसको छुपा रहे हो कि सचमुच you've dealt with it and you're healed completely? I'm not trying to be brave by smiling. I have my own bouts of depression. I cry easily. I cry. बच्चों के साथ में बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसू रोके. मुझे कोई परेशानी नहीं इस बात से. मैं दिलेर बनना नहीं चाहता कि मुझे परेशानी नहीं है. रोना जो है बड़ा अच्छा होता है, इंसान मर्दों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी. रोना is very cathartic. And दुख बताना बहुत important होता है. It's only when you try to be brave that you get into a problem of depression. You don't need to be brave. और किसके सामने brave? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं तो सारे अपने तकलीफ बयान कर देता हूँ. अच्छा होता है. और ऐसा नहीं है कि तकलीफ अभी नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों को. कभी कभी कुछ को देख के होता है, कभी अपने बारे में सोच के होता है, कभी कभी लगता है कि यार कोई चला गया. कल एक मेरा दोस्त, परसों एक दोस्त का भाई चला गया, उसको सुनकर मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई. और मैंने कहा चल कोई बात नहीं. कहता नहीं यार अभी लगता है मुझको कि इतने साल रह गए. मैंने कहा इतने साल क्यों सोच रहा है ऐसा? पर उसके फोन रखने के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ यार पता नहीं कितने साल रह गए. At the end of it, in today's time, you will only touch certain people's lives. Otherwise, you will just trend on Twitter once on a day. बाकी तो आपने जिन लोगों की जिंदगी को छुआ है वो आपको याद करेंगे. जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपको याद करेंगे. और वही इम्पोर्टेंट है. खुशियाँ इम्पोर्टेंट है. एंड there is a new book getting into my mind. I will talk to you about it, frankly speaking, some other time. But interesting book. Well, you're like an onion. Layers और layers निकलती चली जाती हैं अंदर से. So maybe the rest of the onion will be peeled on the next show. But thank you so much for speaking with me and to our viewers, because actually the real wealth that we have is the wealth of experience, the wealth of learnings that we carry with us. और प्यार, खुशी, हंसी ये कोई फिक्स डिपॉजिट की चीज़ नहीं है. ये पहले ही बहुत अच्छे गाने में लिखा गया था, प्यार बांटते चलो उससे ही मल्टीप्लाई होता है. सो थैंक यू वेरी मच अनुपम खेर फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड सचमुच हमें एक दूसरे के साथ पता नहीं कल क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है. आज खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश करना चाहिए. Thank you and see you soon. Yes, I'll see you. But I also say that sometimes conversations are also great way of feeling better. Talking to you for almost 45 minutes right now has been I'm feeling so light about it. So thank you so much, Navika. Thank you and to your people, and stay safe. God bless you. और कुछ भी हो सकता है, हमेशा याद रखना.